Good morning, class 12th. Today I will be continuing with my lesson number 5, that is Contemporary South Asia, and I am coming to part 3, the last part of this chapter. In this chapter we have done about the geopolitical space of the South Asia, in which the India is centrally located and is related to many other South Asian countries. We have done how the democracy and military regimes come and developed and established their control over South Asia. Sometimes it's been observed that these regimes were liked by masses, and sometimes the clergy, the feudal forces, the fascist forces, the insurgents get power and the military regime came into being. We have also done many pictures, many case studies. We have gone through the case studies of Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Nepal and other countries. We have so far in part 2 discussed the relation between India and the countries of South Asia, whether it is a matter of conflict or matter of agreement between India and Pakistan, between India and Sri Lanka, between India and Nepal, between India and Sri Lanka and other parts of the South Asia, the countries of the South Asia. In part 3, when I come to say, then I just start my topic with this state. As it has been observed that South Asian states do not cooperate, or we can say cooperate with each other. Question mark है, क्या जवाब दें इसका कि वो cooperate करते हैं या नहीं? Sometimes it's observed that they are busy in fighting, they are indulged in conflicts with each other, and still, if they are indulged in conflicts on one side, few of the countries also wants to cooperate and maintain friendly relationship among themselves. इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है, फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना है, सार्क was formed in 1985, जिसका मतलब है S for South, A for Asian, A for Association, R for Regional, C for Corporation. SARRC, हम इसे SARC कहते हैं. It was established on 8th of December. That day is celebrated as a SARC Day. The first SARC summit and the first meeting was held in Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh. Here I have not written, but another summit in 1986, the SARC summit was held in New Delhi, that is India. When we talk about SARC, it has certain objectives. Number 1, it wants to work as European Union or ASEAN, that is, it wants to develop more and more economic infrastructure of these South Asian countries. These South Asian countries also wanted to maintain their regional integration. Ultimately, किसी भी देश की करेंसी को इन्होंने मान्यता दी है. SARC is the organization where all its 8 members. Now there is a confusion. I have said 8. 7 तो साउथ एशियन कंट्री हो गए. इसमें 8वां मेंबर कौन है? इसमें 8वां मेंबर अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान जो है वो SARC के अंदर इंक्लूड किया जाता है. इसके अलावा इन कंट्रीज ने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप किया है इन रिलेशन टू एट यूनाइटेड नेशंस, जहां इन्होंने एक अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और ये यूनाइटेड नेशंस में एज अ ऑब्जर्वर की तरह भी काम करते हैं. हम अफगानिस्तान को इंक्लूड करते हैं. 1 इंडिया, 2 पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, 7 हो गए. 8वां अफगानिस्तान. इसके अलावा इट हैड 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज. These observer countries are basically from Europe, the great powers, जिसमें कि फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, यूके भी है, इसमें यूएसए भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें जापान भी है. इसके अलावा 3 और कंट्रीज हैं. आई विल लेट यू द नेम्स, बट इट्स नॉट मेंशन इन द बुक. Even about observers, it hasn't been mentioned.
which work for the upliftment of SAARC. सब कुछ ठीक था, लेकिन सार्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा. रिजल्ट वॉज दैट पहचान खोने का रीजन सिर्फ इसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे. 1985 ऑनवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान हो, नेपाल में माओइस्ट का इंसर्जेंट एक्टिविटीज हो, श्रीलंका के साथ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो, मालदीव और भूटान में पॉलिटिकल इंसर्जेंसी हो, कोई भी कारण रहा हो, बांग्लादेश में EM अरशाद के अंदर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो, ये किसी भी कारण से डेवलप नहीं कर पाया. रिजल्ट वॉज दैट इन्होंने साइन किया मिलके साफ्टा. ठीक है, वैसे तो इसे SAFTA कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में साफ्टा. साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. व्यापार को लेकर सबने एग्रीमेंट कर दिया था. कोई भी बड़ा नहीं है भैया, सबसे बड़ा रुपया. एंड ऑब्वियसली दे वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन्स. इसके अलावा दे ऑल्सो सेड कि चाहे जितने मर्जी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहें, हम अपने व्यापार को अक्रॉस द बॉर्डर्स लेकर जाएंगे. उसमें हमारे किसी भी हालात में पॉलिटिकल डिफरेंसेस इंटरवेंशन नहीं करेंगे. रिजल्ट वॉज दैट कि एक नया चैप्टर, एक नई हिस्ट्री की शुरुआत हुई ऑफ पीस एंड कॉपरेशन, जिसके कारण सारे साउथ एशियन कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, फ्री ट्रेड करने लगेंगे अक्रॉस द बॉर्डर्स. दिस इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ साफ्टा. दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 1 जनवरी 2004, लेकिन साफ्टा का प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2006 के अंदर किया गया है. साफ्टा की एक सबसे बड़ी कहानी ये भी है कि ये लोअर करना चाहता है, मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये रिड्यूस करना चाहता है रिड्यूस करना चाहता है ट्रेड बैरियर्स. आप इसको कह सकते हैं ये कम करना चाहता है, लोअर डाउन करना चाहता है आपके टैक्सेस को या ट्रेड बैरियर्स को. और अल्टीमेटली इसने टारगेट किया है कि बाय 2000 किया था, बाय 2007 ये 20% बैरियर्स को हटा देगा. लेकिन ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हुआ. आज के लिए अभी मैं इतना ही छोड़ रही हूँ. बाकी का टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे.